So students of 12th class, as you know that in the yesterday's or the previous lecture we discuss about the microscope और हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के फर्स्ट वर्जन और सबसे सिंपल वर्जन को स्टडी किया था and that was the simple microscope. Today we are going to extend the level of the microscope and for today we have the topic is compound microscope. This topic from the perspective of your CBSE point of view, ये topic आप लोगों के लिए बहुत important है. By the end of lecture, I will try to discuss with you the most important thing that कि इस बार जो आपका sample paper जो CBSE ने publish किया है, there was a 3 marks question asked from this type of topic. इसी topic से as it is एक 3 marks का question आपके पास रखा गया. So without wasting not that much time, let's start with the lecture. So as you are seeing on the screen, we have the ray diagram for the compound microscope. So definitely ये हमारा final ray diagram है, but इसको understand करने से पहले हम इसे बिल्कुल zero से start करते हैं. Okay? So as I discussed with you earlier that the compound microscope contains 2 lenses. इसमें 2 lenses होते हैं हमारे पास. तो चलिए अपना work करना शुरू करते हैं. About the ray diagram. This is my first lens. The first lens, we call this lens as a objective lens. इस पे ध्यान देते जाएंगे. We call the first lens is called as objective lens. Later on आपको इसका आंसर के बारे में पता चलेगा why we call this as a objective lens. Okay, so this is our principal axis, definitely. Okay, and one more thing, एक चीज जो मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा वो ये कि आप रे डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कीजिए कि हाउ आई एम ड्रॉइंग द रे डायग्राम, किसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, वही आपको कंफर्टेबली हेल्प करने वाला है. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O, focal length F and 2F. On this side we have focal length F dash and we have 2F dash. Okay, so this is our first lens और अब हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है so that we can magnify. So you all are very much aware that कि हमारा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई दो ही केसेस में हो सकता है, when it is placed between focus and optical center and when it is placed between F and 2F. Okay, so now this time we are going to place the object between F and 2F. इस बार हम लोग अपना ऑब्जेक्ट फोकस और 2F के बीच में रखने वाले हैं बिकॉज इस बार जो हमें इमेज मिलेगा, आप सब जानते हैं कि इमेज बनने वाला है रियल एज वेल एज द लार्ज इन साइज. रियल इस बार जरूरी इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे एक सेकंड लेंस को यूज करने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेगा उसे और भी ज्यादा मैग्नीफाई करने में. तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है. सो लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम. पैरेलल लाइट रे will pass through the focus. Okay, then the second, the ray which is passing through the optical center. कहां से बेटा? The ray which is being passing through the optical center will pass without any deviation and meets our ray. हमारी रे से मीट करता है and finally makes an image. Finally आपको एक इमेज बना के देगा and that image is A dash B dash. This is our final image, everyone. Final image B dash A dash. ध्यान से देखते जाएंगे. Okay, this is our first case और ये हमारा पहला रे डायग्राम है with the arrow. Arrow आपको जरूर लगाने, ठीक है. Okay, now ये जो AB है, what is AB? AB is the object. AB is what? AB is the object for first lens. That's why we will call this distance as a UO. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो दैट्स व्हाई द सिंबल इज U, बट ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है. ओके, दैट्स व्हाई हम इसे UO बुलाएंगे. व्हाट इज A dash B dash? A dash B dash is the image distance or sorry is the image for the objective. That's why this distance will be represented with the VO. क्लियर है. अब स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते हैं. स्टोरी लाइन समथिंग इज दैट कि ये जो A dash B dash है, ध्यान से सुनेंगे, A dash B dash जो कि ऑब्जेक्टिव का इमेज है, it will act as an object. It will act as an object for the another lens. एक दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा. ओके, एंड वी कॉल दिस लेंस एज अ आई पीस. हम इस लेंस को आई पीस बुलाएंगे.
अब देखो आईपीस वर्ड से आप फेमिलियर है फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। आईपीस इज दैट लेंस जहां से हम लोग चीजों को देखने वाले, यानी ये वो लेंस है जिस पर हम अपनी आई को प्लेस करेंगे और हम उसकी इमेज देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो लेंसेज यूज होंगे। द फर्स्ट लेंस विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास है हम उसे ऑब्जेक्टिव बुलाएंगे, और जो आईपीस के पास, जो जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, हम उसे आईपीस बुलाएंगे। लेट सपोज द सेंटर इज ई, इसके सेंटर को क्या ले लेते हैं बेटा, ई, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव के सेंटर को ओ लिया, ठीक है। नाउ दिस इज द फाइनल वन, ये हमारे लिए बिल्कुल फाइनल है क्योंकि अब हमें इसे ऑब्जर्व करना है। तो अब हमारे लिए जो ए डैश बी डैश है, जो कि ऑब्जेक्टिव का क्या है, इमेज है, ध्यान से सुनेंगे, ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, बट यही ए डैश बी डैश हमारे आईपीस के लिए क्या काम करेगा, यही हमारे आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम आईपीस को एडजस्ट करेंगे सो दैट आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, वो इसके सेंटर, इसका सेंटर और इसका फोकस एफ ई, ओके, और यहां पे इसका फोकस एफ ई डैश, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम इसे तब तक एडजस्ट करेंगे कि आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव की इमेज है। थोड़ा कंफ्यूजन हो, थोड़ा समझेंगे। ए बी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी इज व्हाट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव, ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव, ए डैश बी डैश ही हमारे आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब हमें इसे ज्यादा आगे नहीं लेके जाना है क्योंकि हमारे लिए दो ही लेंसेज का है, तो अब हम इसे ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो हम इसे लार्जर से लार्जर रखेंगे, तो हम इसके फोकस और सेंटर में, किसके फोकस, आईपीस के फोकस और आईपीस के सेंटर के बीच में रखेंगे, एंड रे डायग्राम पैरेलल will pass through the focus and second one optical center, okay। so ये लेफ्ट साइड में तो आपकी मीट करेंगी नहीं, ओके, सॉरी राइट साइड में, एंड दे विल अपीयर टू बी मीट ऑन बैक साइड। मीट, जब ये अपीयर टू बी मीट होंगी, देन द इमेज, वो जो फाइनल इमेज हमें देखने वाला, दैट द दिस वन, this is our final image that we are going to get, and the name of the final B double dash and A double dash. तो इस फाइनल इमेज को B डबल डैश A डबल डैश, और यहां से आप लोग इसे ऑब्जर्व करने वाले हो। सो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, सो दिस इज आर आई, यहां पे ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, दिस इज द रे डायग्राम। तो अब इसे थोड़ा सा और ढंग से बाकी लेबलिंग वगैरह कर लेते हैं। सो ए बी वापिस से देखेंगे, ए बी क्या है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो दैट्स व्हाई सिंबल इज यू। ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव का क्या है, इमेज है, वीओ, क्लियर है, ओके। ए डैश बी डैश हमारे आईपीस के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस डिस्टेंस इज यूई, यूई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस। और ये जो फाइनल इमेज हमारे लिए बना, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारी इमेज डिस्टेंस है, किसकी, आईपीस की, दैट्स व्हाई वीई। और हमारा केस है कि हमारी फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए, कहां पे बननी चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन पे, दैट्स व्हाई वीई इज इक्वल टू डी। डन है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, तो आप इस डायग्राम को अपने स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, और आइदर यू कैन गो विद दिस डायग्राम, दिस डायग्राम इज बीन कंप्लीटली लेबल, सो नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। वही चीजें मेंशन कर रखी है, अगर आप इस डायग्राम में भी ध्यान से देखें, दैट दिस इज आर यूओ, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव, दिस इज यूई, एंड दिस इज फाइनल वीई। और ये वीई जैसा मैंने आपको बताया, ये वीई डिस्टिंक्ट विजन के बराबर होगा। डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू कितनी होती है आप सब जानते हैं, विच इज 25 सेंटीमीटर, ओके। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, दिस इज द रे डायग्राम फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया वो भी हमारा स्क्रीनशॉट है, ओके ओके। ए डबल डैश बी डबल डैश जो फाइनल इमेज है, जैसे कि इन दिस डायग्राम वो ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाके बन रहा है, जो डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया वो
इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस बन रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो कहां पे बन रही है, बस वो वीई पर बनेगी जो कि डिस्टिंक्ट डिवीजन होना चाहिए। एम आई क्लियर टू दैट? ओके, तो चलिए इस करते हैं। सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्फा बाय बीटा, जो हम लोगों ने कल डिफाइन किए थे। व्हाट इज अल्फा स्टैंड्स फॉर, जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अल्फा मींस एंगल ऑफ इमेज, एंगल ऑफ इमेज विद आईपीस, विद आईपीस, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज बीटा? बीटा स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विद आईपीस, आईपीस के साथ जो ऑब्जेक्ट बना रहा है उसे हम लोग बुलाएंगे, ठीक है। ओके ओके, इसी मैग्निफिकेशन को हम लोग यही बुला सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा मेन ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ऑब्जेक्ट हाइट h, फिर a डैश b डैश क्या है, ध्यान से देखेंगे, a डैश b डैश इज दी हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज है, बट किसका इमेज है, ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है, तो लेट सपोज इट इज h डैश, बट यही h डैश आपके आईपी हाइट का काम करेगा, और हमारी फाइनल इमेज बनी है हाइट इज h डबल डैश। ओके, तो हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। सो मैग्निफिकेशन आप सारे सिंपली जानते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, तो हमारी फाइनल हाइट क्या है, h डबल डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमारे लिए मेन ऑब्जेक्ट यही था। ओके, आप समझ रहे हैं बात को? पॉइंट इज दैट कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है h हाइट का, और हमें जो फाइनल हाइट ऑब्जर्व होगी वो होगी h डबल डैश। h डैश तो इंटरमीडिएट है, जो कि फर्स्ट का इमेज है और सेकंड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट तो ए भी है, और जो ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जर्व करेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। तो हमारे लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, जो हमारी फाइनल इमेज है, टू द हाइट ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब इसमें एक छोटा फर्क कर, मल्टीप्लाई विद h डैश एंड डिवाइड विद h डैश, h डैश से मल्टीप्लाई करें h ओके होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और आगे मॉडिफाई करते हैं। सो h डबल डैश डिवाइडेड बाय h डैश मल्टीप्लाई विद h डैश डिवाइडेड बाय h। ओके, डिनोमिनेटर वाले h डैश को आगे लिख लेते हैं और h को पीछे। अब ध्यान से देखेंगे दैट येलो पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, ध्यान से देखना। ओके, और एक ग्रीन पोर्शन और है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी ध्यान से देखना। ओके, एक बार येलो पोर्शन को देखिए, h डबल डैश डिवाइडेड बाय h डैश। ओके, इसे आप लोग ऑब्जर्व कीजिए आईपीस के नजरिए से। किसके नजरिए से? आईपीस के पर्सपेक्टिव से देखो। तो आईपीस के लिए h डैश, h डबल डैश क्या है आईपीस के लिए? हाइट ऑफ इमेज। h डैश क्या है आईपीस के लिए? आईपीस के लिए बात कर रहा हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आईपीस के लिए ये। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। बट ये हम आईपीस के लिए स्टडी कर रहे थे, तो ठीक है। तो h डबल डैश डिवाइडेड बाय h डैश क्या बन गया? मैग्निफिकेशन, बट किसका? आईपीस का, मल्टीप्लाई बाय। अब इस ग्रीन वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए, h डैश ऑब्जेक्टिव के नजरिए से ये क्या है? h डैश क्या है ऑब्जेक्टिव का? हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन। बट ये मैग्निफिकेशन किसका होगा? ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का होगा। और यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला। What is the total magnification of compound microscope? Total magnification. This M represent net magnification. Okay. So the net magnification of compound microscope is equal to magnification of eyepiece multiply with what? Magnification of objective. क्लियर है? ME मल्टीप्लाई विद MO, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये हमारी टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। ओके, नाउ टोटल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसे एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
VO डिवाइडेड बाय UO। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये तो सब जानते हैं, M इज इक्वल टू V बाई U, और हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं तो VO डिवाइडेड बाय UO। सेकेंड वॉज आईपीस। आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, याद कीजिए। आईपीस को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करके आ चुके हैं, जिसे मैं एक बार बैक में लेके जाना चाहूंगा, एंड दिस वाज द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें हम जहां से हम लोग लेंस की फाइनल इमेज देख रहे थे, हम इसी लेंस को आईपीस बुलाते थे, और इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था, 1 प्लस डी बाई एफ ई। याद रहेगा। लेट्स टेक टू द फर्दर, और इसे यहीं पे ले आते हैं। सो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस का फॉर्मूला है जब फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, मैं फिर से लिख देता हूं, फाइनल इमेज इज एट कहां पे, डिस्टेंट विजन। जब हमारी फाइनल इमेज डिस्टेंट विजन पे बन रही है, ठीक है, इंफिनिटी पे होगी वो केस में बाद में बताऊंगा। तो हमारे पास नेट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया, एमई इंटू एमओ। एमओ क्या है, वीओ बाई यूओ, और एमई क्या है, 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन, the final formula for the magnification of compound microscope is VO by UO 1 plus D by FE. Okay, so this is about the compound microscope. I hope everything is been clear. ये डन है बेटा जी, प्लीज बताएंगे मुझे, ये डन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम, और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज्यादा करनी है। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, द स्टूडेंट, दोज हु आर कनेक्टेड राइट नाउ और दोज हु आर गोइंग टू लुक फ्रॉम द यूट्यूब, प्लीज आपको इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली है, ठीक है। सो दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन, जब हमारी फाइनल इमेज कम से कम डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। डन है। Now I want to take you to the next case where we are going to study the case 2. ये हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस 2 है। तो जैसे हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 केसेस देखे थे, ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी 2 केसेस है। दिस इज योर केस नंबर 2 ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, और ये आपके नोट्स में रहेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। सो ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है, ओके, यहां पे ये गलत लिखा हुआ है प्लीज, दिस इज आवर आईपीस, ये हमारा आईपीस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग यहां पे लिखा हुआ है, तो समटाइम्स ऑनलाइन मटेरियल में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान में रखेंगे। चलो, सो वी करेक्ट इट। सो व्हाट वी टेकन अगेन द सेम ऑब्जेक्टिव, हमारे पास ए बी एज अ ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी एक फाइनल इमेज बनी ए डैश बी डैश। तो ये कहां पे बना, वीओ पे बना, यानी देयर इज नो चेंज इन द रे डायग्राम फॉर द ऑब्जेक्टिव। बट अब हमें फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चाहिए। फाइनल इमेज जो आईपीस इमेज बनाएगा वो इंफिनिटी पे चाहिए। ओके, इंफिनिटी के हमारे कुछ नाम थे जो हम लोगों ने कल लिखे थे, जैसे कि रिलैक्स्ड आई, याद है। We can also use the word relaxed eye और we can also use the word normal adjustment. याद रखना, फिर से दोबारा से ये बार बार आएगा बेटा अभी। Okay, so when the final image is at infinity, or you can say when the final image is seen by the relaxed eye, or when you can say the final image is at normal adjustment. तो बेटा जी, अगर हमें इमेज इंफिनिटी पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, सब याद करो, फोकस पे। अब किसकी इमेज इंफिनिटी पे चाहिए, आईपीस की इमेज इंफिनिटी पे चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ए डैश बी डैश है, ये हमारे आईपीस के लिए क्या था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, और अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था तो ये ही एफई होगा। हमारे लास्ट वाले रे डायग्राम में क्या था, ध्यान से देखेंगे, जो ए डैश बी डैश था वो आईपीस के सेंटर और एफई के बीच में था, बिटवीन द सेंटर एंड फोकस, तभी वो वर्चुअल इमेज और बैक साइड में बनी, ठीक है। तो आज हमें बैक साइड में नहीं चाहिए, हमें इंफिनिटी पे चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ए डैश बी डैश एग्जैक्टली कहां पे होना चाहिए, एग्जैक्टली फोकस पे ही होना चाहिए। इसका मतलब अब हमारा यूई किसके बराबर हो जाएगा, एफई के बराबर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस पे है, और फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। तो
इस केस के लिए भी ओके, ये माइक्रोस्कोप ही है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला MO इंटू ME. ओके, सो मैग्निफिकेशन total magnification is equal to magnification of objective multiply with the magnification of eyepiece. ओके, ऑब्जेक्टिव में आई थिंक कोई चेंज नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन एज इट इज क्या, VO बाई UO. बट आई पीस हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना रहा है. और याद कीजिए, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द लास्ट लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर स्क्रीन, सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. और क्या आया था मैग्निफिकेशन आई पीस का अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो, D बाय FE. क्या आएगा, ओनली D बाय FE. जहां पे अब तक 1 प्लस D बाय FE था, अब ये होगा D बाय FE. तो हमें MO मिल गया, ME मिल गया, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, VO बाय UO ब्रैकेट में D बाय FE. This is been the formula for the magnification of compound microscope when the final image is at what, infinity. क्लियर है यहां तक? चलिए, फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस एक चीज मैं आप सबके सामने ऐड करना चाहूंगा, जो सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे. ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से देखना, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव से लेके आईपीस के बीच तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. इसे हम लोग क्या बुलाएंगे, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. सो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का क्या फॉर्मूला बना, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप? भाई लेंथ कितनी दिख रही है बताइए, ऑब्जेक्टिव से लेके आईपीस तक डिस्टेंस कितना है, ये रहा VO और ये क्या है, UE. तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू VO प्लस UE. ओके, यहां पे मैंने UE को मॉड में रखा है, तो हम सब जानते हैं UE रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, हाँ, जब हम आगे न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो हम UE को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है. किसका लेफ्ट में, आईपीस के लेफ्ट में. बट जब हम लेंथ स्टडी करेंगे ना, तो बेटा लेंथ इज अ जस्ट मैग्नीट्यूड फैक्टर, लंबाई है, तो उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसे मोड में रखेंगे. So what is the length of microscope when the final image is at distinct vision? VO plus UE. और magnification when the final image is at distinct vision is MO into ME, जिसे बाद में सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला बना था VO by UO ब्रैकेट में 1 plus D by FE. Clear with the magnification when the final image is at distinct vision. Clear है? Okay. Then we go to the final image is at infinity. So जब हमारा फाइनल इमेज इंफिनिटी होगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये दिख रहा है. अब इसमें देखो लेंथ कितना होगा, एवरीवन, लेंथ, ये है लेंथ. तो व्हाट इज द लेंथ? इन दिस केस द लेंथ बिकम VO प्लस UE. बट इस बार ये UE किसके बराबर है बेटा, FE के बराबर है, क्योंकि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना पड़ेगा. तो लेंथ का फॉर्मूला VO प्लस FE. So this would be the formula for the length of microscope, but when final image is at infinity, when final image is at relax eye, when the final image is at normal adjustment. Clear hai? Done hai? So this is been about our simple compound microscope when the final image is at distinct vision. Okay, you can check this out. You can take the screenshot of that. This would be our expression, and when the final image is at infinity, this would be our part. Done hai? Anyone having any doubt, please just let me know.